Hello students. Today we will discuss phase transfer catalysts. First we will discuss about introduction, mechanism of PTC यानी phase transfer catalyst reactions, theories of phase transfer catalysts, type of phase transfer catalysts, advantages of phase transfer catalyst and last application of phase transfer catalysis. Student, before this, first we get about nucleophilic substitution reaction. In nucleophilic substitution reactions, nucleophile attacks at substrate. Nucleophile is polar molecule, okay, and dissolve in water. But substrate is non-polar molecule and dissolve insoluble इन वाटर. स्टूडेंट्स, जो हमारी रिएक्शंस होती है, न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो हमेशा क्या रहता है, वाटर में डिसॉल्व रहता है, ओके. एंड जब हम रिएक्शंस करवाते हैं तो हमारा जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस करवाते हैं तो सबस्ट्रेट जो होता है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट उसके लिए हम यूज करते हैं. सबस्ट्रेट के लिए हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, बट न्यूक्लियोफाइल के लिए हम पोलर या वाटर यूज करते हैं. तो जब हम रिएक्शन करवाते हैं, व्हेन द रिएक्शन इज कैरिड आउट, द कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट शुड बी इन सेम फेज फॉर एप्रिशिएट रिएक्शन रेट. ओके स्टूडेंट्स, कि दोनों को सेम फेज में रहना चाहिए, जिससे कि क्या हो कि दोनों में एप्रिशिएट रिएक्शन रेट हो. ये अलग फेज में है, ये अलग फेज में है, या तो न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट में नहीं जा पाएगा क्योंकि ऑर्गेनिक में ये इनसॉल्युबल होता है, सबस्ट्रेट का वाटर में डिसॉल्व नहीं होता. तो इससे क्या होता है, रिएक्शन प्रॉब्लमेटिक हो जाती है. रिएक्शन में मतलब रिएक्शन प्रॉब्लमेटिक होती है. दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस. कि अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए कि हम रिएक्शन रेट को एक्सेलरेट करें, न्यूक्लियोफाइल इजीली सॉल्युबल हो जाए, ऑर्गेनिक में मतलब दोनों के बीच में रिएक्शन रेट इंक्रीज हो जाए. तो ऐसा कैसे हो सकता है? दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट. सो व्हाट इज फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट? फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट इज यूज्ड टू कैरी आउट nucleophile from one phase to another phase. ओके स्टूडेंट्स, फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो कि दोनों फेज में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, और वो सॉल्युबल होंगे, वो न्यूक्लियोफाइल को कैरी आउट करते हैं और साथ में कहाँ ले जाते हैं? सबस्ट्रेट में ले जाते हैं, सबस्ट्रेट के पास ले जाते हैं, नेक्स्ट अदर फेज में ले जाते हैं. नाउ सी इट्स डेफिनेशन. फेज ट्रांसफर कैटलिसिस PTC refers to reaction between two substances located in different immiscible phases in the presence of catalysts. Example, heterogeneous catalysis. It facilitates the migration of a reactant from one phase into another phase where reaction occur. Now, theory of phase transfer catalyst, intermediate compound formulation theory. According to this theory, one of the reactant combines with catalyst A and C. देखिए A जो है वो हमारा reactant है and C catalyst है. According to this theory, one of the reactant combines with catalyst and form intermediate product which come out the reaction. C, A is a reactant and C is catalyst and A combines with catalyst. Okay, now it enters other phase and comes towards B, other reactant, AC plus B. Okay students, now A plus B plus C, B and A combines with each other and C catalysts will back free. This is the theory of mechanism of phase transfer catalyst. Other theory is adsorption theory. In general, adsorption theory applies to heterogeneous catalysis reactions. The catalyst functions by the adsorption of the reacting molecules on the surface. The adsorption reactions undergoes 4 types of steps. First is adsorption of reactant molecules. In this type of step, the reactant molecules A and B strike the surface of the catalysts, and the reaction molecule held up by the partial chemical bond.
सी स्टूडेंट्स एट इन एब्सॉर्प्शन थ्योरी ए एंड बी बोथ टाइप ऑफ रिएक्टेंट्स जो कि रिएक्ट करते हैं स्ट्राइक एट द कैटलिस्ट सरफेस पर कैटलिस्ट का स्ट्राइक हो जाता है एंड पार्शियली बोन फॉर्मेशन हो जाता है. ठीक है. After that, the reactant molecule adjacent one another join and form intermediate complex. Students, this intermediate complex is unstable. Now, intermediate complex जो बना था breaks and form the products C and D. Okay. एंड जो भी ये दोनों प्रोडक्ट जो इंटरमीडिएट बना था, मैं यहाँ वापस बना देती हूँ. कौन सा बना, इस तरह से बना था इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, वो ब्रेक हो जाता है एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट सी एंड डी. द प्रोडक्ट्स मॉलिक्यूल्स होल्ड द कैटलिस्ट सरफेस बाय पार्शियली केमिकल बॉन्ड. ओके स्टूडेंट्स. एंड एट लास्ट द प्रोडक्ट पार्टिकल्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द सरफेस. नाउ मैकेनिज्म ऑफ पीटीसी रिएक्शन, फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट की जो रिएक्शंस है उनकी रिएक्शंस देखिए. उस पे मैंने शो किया है एक ऑर्गेनिक फेज एंड एक एक्वस फेज. एक्वस फेज में हमारा जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो होगा एंड अदर रिएक्टेंट हमारा ऑर्गेनिक फेज में होगा. मैं इसको एक बार एक रिएक्शन से एक्सप्लेन कर देती हूँ. स्टूडेंट्स, दिस इज द रिएक्शन एल्काइल हैलाइड RX प्लस NaCN. ठीक है. अब इन दोनों की अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन में RX और NaCN, सी दिस इज NaCN वाटर सॉल्युबल होगा एंड एल्काइल हैलाइड जो होगा वो ऑर्गेनिक के X माइनस के साथ R जुड़ा हुआ है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा. एंड NaCN को इससे रिएक्शन करने के लिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जाना होगा. देखिए यहाँ NaCN माइनस है और इधर में अपना दूसरा फेज है जिसमें कि R प्लस X माइनस है. तो रिएक्शन होने के लिए इनको इसके पास जाना होगा और ये एक्वस में है और ये ऑर्गेनिक में है. तो ये प्रॉब्लम है, कैसे जाए. तो यहाँ पर क्या होता है इस रिएक्शन, अगर ये अलग अलग NaCN अलग जाता है, Na प्लस अलग जाता है तो इनकी न्यूट्रलिटी खत्म हो जाएगी. इन दोनों को एक साथ ही यहाँ जाना होगा एक. ठीक है. तो कैसे होगा, हाउ इज इट पॉसिबल. यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सोल्व करता है पीटीसी. Students, what is good about PTC? PTC, actually students, PTC soluble in both solvents. PTC is soluble in both solvents because of its structure. Example quaternary salts जो होते हैं वो PTC के फॉर्म में यूज होते हैं. क्वाटरनरी सॉल्ट होते हैं तो इनके पास जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं इसके कारण ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल रहते हैं और साथ में वाटर में भी सॉल्युबल रहते हैं. तो यहाँ क्या होगा कि NaCN, ठीक है, और यहाँ पे ये ऑर्गेनिक फेज है, यहाँ पे एक्वस फेज है. ये क्वाटरनरी सोल्ट हो गया हमारा Q प्लस एंड X माइनस. ओके, ये क्वाटरनरी सोल्ट है और ये NaCN एक्वस फेज में, ये RX में. तो रिएक्शन में क्या होगा, जब हम PTC को ऐड करते हैं तो ये जो Q प्लस है ये क्वाटरनरी सोल्ट क्या होगा, यहाँ पे इसमें मिक्स हो जाएगा, एक्वस सोल्यूशन में मिक्स होगा. एक्वस सोल्यूशन में Q प्लस क्या होगा, इस CN माइनस को कैप्चर कर लेगा और X माइनस Na प्लस को कैप्चर कर लेगा. तो यहां से क्या फॉर्म होगा, एक्वस सॉल्यूशन में NaX एंड QCN. यहां लिख दूं मैं QCN. ठीक है, Q प्लस CN माइनस. तो यहाँ पे PTC इस एक्वस सॉल्यूशन में NaCN के साथ रिएक्शन करेगा. NaX एंड QCN ये बन गया. अब यहां से जब ये हो गया तो क्या है, Q में एल्काइल ग्रुप्स हैं तो इसको लेके कहाँ चला जाएगा, ऑर्गेनिक फेज में. ऑर्गेनिक फेज में क्या प्रेजेंट है, R प्लस एंड X माइनस आर प्रेजेंट है ना. तो यहाँ पे Q प्लस और CN माइनस से R प्लस X माइनस अगर अटैच होगा तो R प्लस को CN माइनस मिल जाएगा. सी यहाँ पे इनकी बॉन्डिंग इससे ज्यादा अच्छी है. R प्लस CN माइनस से अटैच्ड हो जाएगा सॉरी, एंड Q प्लस यहाँ से X माइनस. तो वापिस से हमें X माइनस मिल गया क्योंकि यहाँ पे इसकी बॉन्डिंग कंपैरेटिवली इसके ज्यादा थी. तो जैसे ही Q
CN को X माइनस मिल रहा है और R प्लस मिल रहा है, तो CN रैपिडली R प्लस के साथ अटैच्ड हो जाएगा एंड Q प्लस रैपिडली X माइनस के साथ अटैच्ड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें वापस से क्वार्टनरी सॉल्ट मिल जाता है और हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है, कौन सा, RCN बन जाता है। Na+X जो होता है वो एक्वस सॉल्यूशन में ही रहता है। इस तरह से प्यूरिफाइड भी हो जाता है हमारा जो प्रोडक्ट होता है, जो हमें अचीव चाहिए होता है तो वो हमें मिल जाता है। इस तरह से पूरी की पूरी प्रोसेस होती है। Thus, students, phase transfer catalysts are specially useful. Phase transfer catalysts specially useful in green chemistry by allowing the use of water. Then need of organic solvent is reduced. Organic solvent का reduction हो जाता है, जरूरी हमें इतना लेना नहीं पड़ता. Now let's see advantages of phase transfer catalysts. First is do not require vigorous conditions and the reaction are fast. ओके स्टूडेंट्स, कंडीशंस, विगरस कंडीशंस की हीट एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी देने की जो नीड नहीं है, जो कि हमारे ग्रीन केमिस्ट्री के 12 प्रिंसिपल्स में एक है कि एनर्जी की सेविंग होनी चाहिए, जरूरी है, एक्स्ट्रा हीटिंग प्रोसेस नहीं हो, तो उसके उस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है ये। डू नॉट रिक्वायर विगरस कंडीशंस एंड द रिएक्शन आर फास्ट ऑटोमेटिकली। ओके, नेक्स्ट इज डू नॉट रिक्वायर एक्सपेंसिव अप्रोटिक सॉल्वेंट्स। स्टूडेंट्स, okay, do not require expensive aprotic solvents. Next is do not require high temperature. Okay, the reaction usually occur in at low temperature. PTC की प्रेजेंस में हम नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन को एसिलरेट करवा सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन नॉर्मल हो सकता है। देयर इज नो नीड फॉर एनहाइड्रस कंडीशंस सिंस वाटर इज यूज्ड एज वन ऑफ द वन फेजेस। हमें एनहाइड्रस कंडीशन की कोई नीड नहीं है, क्योंकि हम एक फेज की फॉर्म में किसको यूज कर रहे हैं, वाटर को यूज कर रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ पीटीसी द एनायन इज अवेलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड सो इट्स न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज। ओके स्टूडेंट्स, the students reactions usually progress under mild conditions with easy workup and procedures, so it is very important for green chemistry, environmental friendly. That's why the reason they are mostly used in industrially as a industrially workups. Students, some other reactions are esterification. Esterification, RCOONA, carboxylic acid as sodium salt plus alkyl halide. PTC यूज किया है हमने, ट्राई इथाइल अमीन, साथ में हमें क्या मिल गया, एस्टर मिल गया, साथ में NaX मिल गया। नेक्स्ट रिएक्शन इज इन द फील्ड ऑफ फार्मास्यूटिकल्स लाइक सिंथेसिस ऑफ वेरियस ड्रग्स लाइक डाइसाइक्लोएमीन, फिनोल, pyridine, oxazolidine, Ritalin, etc. Next is William ether synthesis. Alcohol plus में alkyl halide, in the presence of PTC we get ether and byproducts. Next, benzoin condensation. In this, benzaldehyde as a reactant and cyanide ions as a nucleophile reaction, benzoin we get 92% yield. Phenol and alkyl halide reacts in the presence of PTC and base and we get aryl ether as a good yield. Some examples is there of PTC. Quaternary ammonium salts such as ammonium, phosphonium, anti-ammonium and tertiary sulfonium salts, ये सब एज अ क्वाटरनरी सॉल्ट की फॉर्म में यूज होते हैं। हम अमोनियम, जनरली अमोनियम और फॉस्फोनियम को हम यूज करते हैं, और इस तरह से इनके जो एग्जाम्पल्स है जिनको हम मोस्टली इंडस्ट्रीज एरिया में यूज करते हैं, पीटीसी की एलिकट 336 को हम मोस्टली यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में। एंड नेक्स्ट बेंजाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम क्लोराइड और ब्रोमाइड, TMBA, एंड नेक्स्ट इज बेंजाइल ट्राई इथाइल अमोनियम क्लोराइड एंड सेटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम क्लोराइड और ब्रोमाइड, CTMAB. ओके स्टूडेंट्स, these are the examples of quaternary salt or PTC. Thank you students.